مذاکرہ مدنی مذاکرہ مرحبا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اب افطار بھی کر لیجئے. مناسب یہ کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے بلکہ کچھ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی تیسری شب ہے. فرمان اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ سوال جواب آپ کریں چند مزید نیتیں شامل کر لیں. علم دین حاصل کروں گا اس نیت سے تو شرکت کرنی ہی ہوتی ہے. مزید یہ ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت کی بھی ترکیب کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم یہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ آج جو ہم حضور علیہ السلام کے جشن ولادت کے موقع پر لائٹیں لگاتے ہیں جلوسوں میں جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک الگ انداز ہوتا ہے چراغاں کرنے کا ہر انسان کا. جھنڈے لگانا لائٹیں لگانا روشنیاں کرنا خوشیاں منانا. تو جس زمانے میں یہ لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں اور جو یہ روشنی والا جو سسٹم یہ نہیں ہوتا تھا تو کس طریقے سے وہ لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے یا کس طریقے سے وہ جشن ولادت منایا کرتے تھے؟ اصل جشن ولادت منانے میں کیا ہے کہ لوگوں کو اس بہانے اکٹھا ہوتے ہیں اور
इनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है, सुन्नतें बयान की जाती हैं, शान मज़ीद लोगों के दिलों में इज़्ज़त, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अज़मत उजागर होती है। असल इसकी बुनियादी वजह ये है, और ये आजकल से नहीं है, ये सदियों से ये सिलसिला चला रहा। बल्कि सच्ची बात यह है कि ये तो मतलब दुनिया में हम लोगों के आने से पहले अल्लाह पाक ने सारे नबियों से ये अहद लिया था कि मेरे नबी आएंगे, आखिरी नबी तो तुम उनकी मदद करना। आयत पढ़ो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। यानी और याद करो जब अल्लाह ने तमाम नबियों से पुख्ता वादा लिया कि मैंने तुम्हें किताब और हिकमत अता की, यानी तुम्हें नबी बनाया, फिर इसके बाद तुम्हारे पास एक अजीम शान रसूल आएंगे, जो कुछ तुम्हारे पास है यानी तुम्हारी किताबें हैं उनकी तस्दीक करेंगे, तो तुम ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर उनकी मदद करना। यह है पहली महफिल मिलाद। इसमें विलादत का तो तज़किरा है कि तुम्हारे पास आएंगे। आलम अरवाह में ये महफिल मिलाद हुई। अब ये अपना अंदाज था, और ये महफिल मिलाद अल्लाह पाक ने इनमान होकर कि अल्लाह पाक ने फरमाया, उसमें खिताब फरमाया, अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाया। फिर अब अंदाज अपने अंदाज से हम लोग ये करते आ रहे हैं। तो अब ये कहे ये अंदाज है जो आजकल, पहले तो बिजली और ये थी नहीं, तो अच्छा पहले अब हो सकता है दिया वगैरह जलाते हो लोग, शमे जलाते हो, लेकिन इसका कुछ मतलब है नहीं कि मुझे मालूमात नहीं। लेकिन ये कि महफिल मिलाद होती थी, अपने अपने अंदाज से होती थी। सबसे पहले यानी कि जो मुरव्वजा अंदाज है ना, आजकल जो राइज है, मुरव्वजा माने राइज शुदा जो अंदाज है, तो ये इसका जो बाकायदा जो आगाज हुआ ना जश्न विलादत मनाने का, अरबल के बादशाह अबू सईद मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने किया। इनकी फरमाइश के मुताबिक शेख मजदुद्दीन उमर बिन हसन इब्ने दिहया रहमतुल्लाह अलैह ने मिलाद शरीफ के मौजू पर शानदार किताब अत-तनवीर व बिमौलिदिल बशीर व नज़ीर लिखी। इस पर अबू सईद मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने, बादशाह जो थे, उन्होंने हजरत शेख मजदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को 1000 सोने के सिक्के क्वाइंस बतौर इनाम पेश किए। हवाला जवाहिरुल बिहार उर्दू जिल्द 4 सफ़ा 88। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर रहमत और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सुभान अल्लाह, कैसा पाकीज़ा दौर था और कैसे कदरदान आशिक रसूल थे कि मौलूद शरीफ की किताब लिखने पर इतना बड़ा इनाम दिया। इससे भी पता चला कि पहले के बुजुर्ग अपने अंदाज पर खूब जश्न विलादत मनाया करते थे। और इससे ये भी पता चला कि कोई अगर जिक्र मीलाद करता है, विलादत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है, और इसको खुश होकर किसी ने कुछ पेश किया नजराना वगैरह, तो इसमें भी शरन हरज नहीं है, जबकि कोई और इसमें रुकावट ना हो। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। सुभानअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। आगे जो जो इसमें जिद्दत होती जा रही है, तो उस वक्त तक ये जिद्दत जो है ये कार्य सवाब रहेगी जब तक ये शरीयत से न टकराए और अच्छी नीयत से की जा रही हो। क्योंकि कुरान करीम में
تو اب یہ کہ تعظیم و توقیر کا جو بھی یہ مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی انداز اختیار کیا جائے گا تو وہ اس میں داخل ہے، تعظیم و توقیر کا، سرکار کی عزت کا، تعظیم کا۔ تو یہ کہ ہر دور میں نیا نیا انداز ہوگا۔ پہلے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ کھجور کے درخت کے تنے اور چٹائی کی چھت تھی اور کچی کچی مٹی فرش۔ اس کے بعد بارش میں جو تھا وہ مٹی تو گیلی ہوئی اور صحابہ کرام نے کچھ بجری وغیرہ لا کر بچھائی، تو یہ بھی پسند کیا گیا، تو پھر یہ اس طرح تھوڑا فرش جو تھا یہ پکا ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد اب دیکھیں اربوں روپے کا سونا اور اس میں اور کیا کیا سجاوٹیں مسجد نبی شریف میں موجود ہیں۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار پر انوار ہے، قبر انور، اس کے اندر جالی مبارک کے اندر جو نظر نہیں آتا، کروڑوں اربوں روپے کا سونا جو ہے بادشاہوں نے اپنے وقت میں نظر کیا، وہ بھی وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ بھی ہے۔ اب یہ کہ ابھی اگر کوئی بولے کہ صحابہ کرام نے اتنا سونا کہاں لگایا مسجد نبی شریف میں اور اتنی سجاوٹ، پھر لینتھر، پھر اے سی، اب تو ایئر کنڈیشنڈ ہے، یہاں کوئی کچھ بولتا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا کچھ، لیکن یہی جھنڈا اٹھایا 50 روپیہ کا، یہ کہاں سے آیا؟ 100 روپے کے بلب جلائے، یہ کہاں سے آئے؟ پھر لوگوں کو غریب بھی یاد آتے ہیں کہ سب غریبوں کو دے دو۔ کعبہ شریف پر غلاف لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے تو سارا سال کام ہوتا ہے، کروڑ روپے، اربوں روپے، پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے اس پر، وہ سونے کے تاروں سے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی غریب نہیں یاد آتا کہ بھائی یہ سونا نکالو غریبوں کو، تو میں بھی نہیں کہوں گا دے دو، میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خالی مطلب جشن ولادت کی 200-500 روپے کی کسی عاشق رسول نے لائٹنگ کی تو تب غریب آتے ہیں، بیوائیں، یتیم سب یاد آتے ہیں۔ واٹ از دس؟ 5 لاکھ روپے کا موبائل فون ہاتھ میں ہے، تب کوئی غریب یاد نہیں آتا کہ 50,000 کا موبائل لو، بیچ کے 4.5 لاکھ روپے کسی بیوہ کے قدموں میں ڈال دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ لائٹیں اتارو۔ تو بہرحال یہ کہ پتہ نہیں پیٹ میں کچھ اور ہی درد لگتا ہے۔ اللہ اس مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں میں کوئی ایسا مریض نہ ہو۔ کینسر کا مرض، ٹی بی کا مرض سب مہلک ہیں، خطرناک ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ مرض اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو مطلب سرکار کی عظمت اور محبت کو گھٹانے کے لیے جو مرض ہو جاتا ہے نا، یہ اتنا خدا کی قسم خطرناک ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ کوئی مرض، کوئی بیماری اس کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ اللہ اس بیماری سے بھی، اس بیماری سے ہم کو محفوظ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور یہ ٹی بی یا کینسر وغیرہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، لیکن اصل مرض جو ہے نا، میں نے خوفناک مرض جو مطلب یعنی کہ ایمان برباد کرنے والا مرض ہے، بس وہ خطرناک زیادہ ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، کیوں بھائی اس کو فراموش کیے جاتا ہے، اور وہ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ تو دنیا کے جو یعنی بیماریاں ہیں وہ تم گناہ مٹاتے ہیں، درجے بڑھاتے ہیں، اور یہ مرض جو ہے نا خطرناک، یہ کفر کی طرف گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ صلو علی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک تو آپ نے حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تصنیف کا ذکر کیا، التنویر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں حافظ عبد الحی القطانی المغربی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے التآلیف المولیدیہ، یعنی وہ کتابیں جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود پر لکھی گئی ہیں۔ تو انہوں نے 3 صدی ہجری سے حافظ ابن ابی عاصم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں 3 صدی ہجری کے، ان سے شروع کیا کہ انہوں نے میلاد پر کتاب لکھی۔ اس کے بعد اور کئی علماء مسلسل یہ میلاد پر کتابیں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ کتاب تحریر کی، اور بعض علماء نے اس سے بڑھ کر اس پر تحقیق کی اور فرمایا کہ مولود شریف پر سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ 2 صدی ہجری میں محمد بن عمر الواقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مولود کے اوپر کتاب تحریر فرمائی. آج سے 1200 سال پہلے. جی 1200 سال پہلے، یعنی اتنے وقت سے صرف کتابیں لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. عمومی طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں بعد میں بھی جو لکھی گئی ہیں، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی. تو ہمیشہ وہ کتابوں کے اندر یہی لکھتے رہے کہ کانوا یحتفلون، مسلمان ہمیشہ سے میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ شروع سے جاری تھا. اور بعضوں نے تو باقاعدہ لکھا کہ مولود کی رات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر جس جگہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہوئی تھی، اپنے اپنے لکھے ہوئے جو مولود نامے تھے وہ لے جا کے پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے مکان اقدس پر. تو یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا آیا. پھر انہوں نے کئی علماء کا لکھا کہ ایسی ایسی دعوتیں کرتے تھے مولود کی رات کہ جس کا بڑے بڑے حاکم بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، کہ اتنی لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اس رات میں. سبحان اللہ. پورے پورے بکرے تو اب بھی حرمین طیبین میں، مکہ مدینہ میں بھی، میں اب بھی شرکت کبھی نہیں ہوئی میری، لیکن پتہ چلا ہے وہاں اہل عرب کرتے ہیں، وہاں مولود کرتے ہیں. بدھ کو وہاں ایسے گھرانے ہیں عربوں کے کہ جہاں مطلب ہر بدھ کو مولود ہوتا ہے. ایسے مولود میں نے شرکت کی ہے چند بار مدینہ شریف میں. الحمدللہ. جس طرح ہم لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ بولتے ہیں، یا غوث پاک بولتے ہیں، سب اس میں نے دیکھا سب بولا جاتا تھا. الحمدللہ. وہ عربی میں تھا، ہمارے یہاں اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی مہلک مرض کا بیان کیا، اور اس کو پیٹ کے درد کے ساتھ آپ نے اس کو ایک اشارتاً ایک تشبیہ دی. اب مثال کے طور پر اتنی دیر سے ماشاءاللہ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو، کیونکہ آپ نے اس مرض کی علامتیں بھی بیان فرمائی نا، ہو سکتا ہے کسی کو ایسا لگا ہو کہ یار یہ علامتیں تو میرے اندر ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے مجھے کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو میرے اندر آتی ہیں، میرے دماغ میں، میرے دل و میرے اس میں میرے گردے پھیپڑے میں خیالات آتے ہیں، یار یہ پیٹ کا درد کہیں میرے کو تو نہیں لگا ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اب اس کو مثال کے طور پہ بیٹھا ہو، اس کو لگا، اس کو گھر والے اشارہ کرو، دیکھو یہ صحیح تو بول رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے ہو آپ، یہ صاحب کیا درد لے کر بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ بولے یار ٹھیک ہے وہ درد بتا دیا، اب اس کا علاج کہاں سے کراؤں، کوئی جگہ تو بتاؤ کہاں جاؤں اس کا علاج کرانے کے لیے، اس کا درد ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ بتاؤ. تو آپ کو راستہ بتاؤ نا، کہاں جائے یہ علاج کا صحیح. فیضان مدینہ ہے نا اس کا شفا خانہ. یہ شفا خانہ ہے. انشاءاللہ یہاں آئیں گے سارے مرض دور ہو جائیں گے. اس طرح کے فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان مدینہ آئیں گے، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ سارے مرض دور ہو کر آپ بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے مطلب کہ سمجھ نہیں آتی ایسی چیزیں. مجھے بہت ماضی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، اور وہ بھی شروعات کا دور تھا. ہو سکتا ہے مسجد شریف بھی فیضان مدینہ وہ تعمیر ہوتی ہو، تو وہاں ایک مدرسہ تھا. اب شاید وہ مدرسہ ہے نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں اس کا ایک تعلیم تھا، بڑے درجے کا شاید طالب علم تھا وہ. اچھا وہاں کیا ہوتا تھا فیضان مدینہ میں اجتماع میں، وہ اس وقت ایک جوش جذبہ میں بھی جوان تھا تقریباً، تو بڑا جوش و ولولہ ہوتا تھا. لوگ یعنی کہ دعا میں دھاڑے مار مار کے روتے تھے اور تڑپتے تھے. اب اس ماحول کو دیکھنے والا اکے دکے ملتے ہیں جو مطلب تھے، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہو نہ ہو، وہ پھر وہ سب میری طرح ریٹائر ایج ان کی، بڑھاپا. تو اس میں وہ ایک طالب علم جو تھا وہ مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ روتے ہیں اور اچھلتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یار، کیا ہو جاتا ہے یہ تو مطلب نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اس نے بہرحال میں اپنے احتیاطاً بول رہا ہوں، تو کچھ اور باتیں ویسی بولی تھی جو میں لائیو نہیں بول سکتا، اتنا خلاف ہو گیا تھا وہ. اسی طرح اس کو تیار کر کے میرے پاس لیا ہے، میں نے اس کو سمجھایا تو یہ خاموش ہوا. پھر جب شاید دوسری جمعرات، جب جمعرات کو یہ دعا میں ماحول بنتا تھا کہ لوگ بہت روتے تھے، تو بتایا ایسا ہے بھائیوں نے کہ وہی جس کو اعتراض تھا نا، اس کو ایسا حال چڑھا
उसने उछल कूद मचा दी थी। उसी ने रोना धोना, पछाड़े खाना, उछलना, उसको मतलब ये कैफियत तारी होगी, प्रैक्टिकल हो गया उसका। तब ये कि वो जिसने कभी शहद चखा ही नहीं, बोले क्या सब लोग शहद शहद करते, क्या होता है, छोड़ो। यानी जिसका मुंह ही कड़वा है उसको समझ ही नहीं आएगी ना। लेकिन जब इसका मुंह साफ होगा, किसी आशिक रसूल की नज़र पड़ेगी उस पर, उसका मुंह साफ होगा, फिर शहद चखेगा तो बोले आज तक इस नेमत से तो मैं तो महरूम था यार, इसलिए मैं मुखालिफ कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो ये अच्छा ही नहीं है। तो ये नहीं है। जो लाखों करोड़ों मुसलमानों को एक चीज़ अच्छी लग रही है, और इसमें क्या है, हम लोग जश्न विलादत में क्या करते हैं, दीन की बातें तो करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करते हैं, सुन्नतें बयान करते हैं, नमाज की बात करते हैं, कि इस बहाने लोग जमा हो जाते हैं। जमा होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लाए उसी दीन का तो पैगाम दे रहे हैं। अपने माँ बाप के तस्करे तो लेके नहीं बैठे हम, आका का जिक्र खैर कर रहे हैं। तो इसमें क्या तकलीफ क्या है, इसमें फायदा भी होता है, बीमारियां दूर होती हैं इससे। हाँ, जो बेनमाजी था ये बहुत बड़ा मरीज है गुनाहों का, वो शिफा पा जाता है, नमाजी बन जाता है। जो कल तक गालियां बकता था और गाने सुनता था, गाने बोलता था, यहाँ आकर ऐसी शिफा मिलती है कि गानों की जगह नाते बोलता है, गालियों की जगह मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाना शुरू कर देता है। तो यानी कि यहाँ फायदा ही होता है ना। जश्न विलादत के सदक़े में बाज़ औक़ात तो मतलब ऐसे भी वाक़यात हैं, सुबह 12 में भी इस तरह का वाक़या है एक आध, कि इस मंज़र देखकर बाज़ गैर मुस्लिम ईमान ले आते हैं कि ये अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग इतना खर्च करते हैं इस पर, ज़रूर ये लोग सही लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मनाना जश्ने मीलादुन नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, और लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, लगाते जाएंगे या रसूल अल्लाह के नारे, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, अच्छी की आमद मरहबा, लगाते जाएंगे या रसूल अल्लाह के नारे, मचाना मरहबा की धूप भी हरगिज़ न छोड़ेंगे, मचाना मरहबा की धूप भी हरगिज़ न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे, बोलो सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ न छोड़ेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकतबतुल मदीना का रिसाला आशिक मिलाद बादशाह, इसमें आप पढ़ सकेंगे अक्लों को हैरान कर देने वाला वाक़या, मिलाद मुस्तफ़ा का बाकायदा आगाज़ करने वाला बादशाह, शैतानी लोग चरागा देखकर गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इसके अलावा बहुत कुछ। ये रिसाला 21 पेजेस 21 सफ़हात का है, और 23 रुपीज़ में आप मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इन दिनों बांटने वाला रिसाला है, खूब खरीद कर घर घर पहुँचाएँ, दुकान दुकान पहुँचाएँ,
इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा लोगों का, आशिकों का, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वगरना बेचारों का क्या हाल होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाकर भेजा कि तमाम मखलूक के महबूब हों और दायमी महबूब हों, इसलिए आपके फिराक में लकड़ियां ऊँट रोए और आज बगैर देखे करोड़ों आशिक मौजूद हैं और रहेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में रोशन निशानियाँ दिगर मुअज्जिज़ात न भी होते तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा ये आपके नबी होने की खबर दे देता। सरकार क़ियामत मरहबा, हुजूर क़ियामत मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। प्यारे दादा जान, क्या दूध से हुजू हो जाएगा? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको हज नसीब करे, माँ बाप समेत ख़ानदान वालों समेत हज नसीब करे, मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए, सादतें बार बार अता फरमाए, आमीन। अच्छा, जुनैद इब्न हाजी उबैद रज़ा ने सवाल किया है कि दूध से वज़ू होगा या नहीं। दूध से वज़ू नहीं होगा, यानी ये मसला ज़हन में रखें कि जिसको पानी बोलते हैं ना, पानी से वज़ू होगा। जैसे पानी जिसको नहीं बोलेंगे तो अब उससे वज़ू नहीं होगा। जैसे पानी और दूध मिक्स हो गया तो उसमें सफ़ेदी आ जाती है, थोड़ा पानी थोड़ा दूध है, तो इसका नाम हो गया छाछ। छाछ से वज़ू नहीं होगा। गुलाब का पानी तो है तो गुलाब ना, गुलाब का पानी, इससे भी वज़ू नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कल गुस्से के हवाले से गुफ्तगू चली थी तो उस पर एक कॉल आई थी, वो हम चला रहे हैं। या सगीनी गुस्से के मुतालिक आपने जो मदनीपुर इरशाद फरमाया उसी से मुतालिका सवाल ये है कि कुछ लोग आगे वाले को ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं तुमको बहुत कुछ कह सकता हूँ या मैं तुमको बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो क्या ये उनका गुस्से पर सब्र करना कहलाएगा? जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा सवाल है, माशाअल्लाह। है गुस्से का इजहार ही है ये, बज़ाहिर तो गौर मैंने किया भी जब सवाल हो रहा था। जैसे मतलब एतिकाफ जो होते हैं ना, अनघड़ भी होते हैं, इसमें भी इतने सारे आए हुए हैं माशाअल्लाह, हज़ारों आए हुए हैं इधर उधर से। तो अब हर एक तो मतलब ज़ाहिर है विलायत का ताज पहने हुए हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे भी होंगे। मस्जिद है, कुछ नहीं बोलूँगा अभी, बाहर निकलेंगे फिर मुलाकात करूँगा आपसे। ये क्या है, गुस्से का इज़हार ही तो है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकल तू खाली। ऐसा मुमकिन है कोई ऐसा भी होता होगा, इतने सारे हैं इसमें, सारे हर फर्द तो तरह तरह के होते हैं। इंशाअल्लाह अब किसी ने बोला भी है तो इंशाअल्लाह उससे माफ़ी मांग ले। दिल आज़ार गुफ्तगू हुई है, अगले को खौफजदा किया, हो सकता है वो भी शेर का सवा शेर हो, तो अल्लाह ना करे। तो इस तरह और भी इजहार की सूरतें तो होती हैं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन जा मैं कुछ नहीं बोलता तेरे को, ये सब कुछ बोल दिया, अब बोलता कुछ भी नहीं बोलता। और उसको नहीं, गुस्से का इजहार तो उसका होता ये था कि वो मारता पीटता, अब वो बर्दाश्त कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इसको कुछ भी ना कहूँ। बस उसको ये कह दिया कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता था, कुदरत तो मेरे पास है, लेकिन चूँकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहा। तो ये वो जो सख्त जो रिज़ल्ट आने वाला था उसके मुकाबले में ये नीचे की तरफ आ गया, सिर्फ अपने इस बात को वाज़े करने के लिए कि मैं वो कुछ करना नहीं चाहता जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो क्या ये भी इसकी इजाज़त नहीं होगी इसे? ये मतलब है कि फूफा तो है ना अपनी यार, वट तो है ना,
बच्चों क्या समझता है मुझे, मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोलता। ये बोल क्यों रहा है? गुस्से ही की तो वजह से बोल रहा है, वरना प्यार आने पर कोई नहीं बोलेगा कि आज तो यार तू बहुत अच्छा आता है, अच्छा लग रहा है यार, तो कुछ नहीं बोलता यार। तो ये ऐसा कोई नहीं करता। वल्लाहु आलम, में से मेरे जहन में है कि शायद ये गुस्से का इजहार है, जैसे आप फरमाएं उसी बदन होगा। अगर ये गुस्सा नहीं है, गुस्से का इजहार, तो चलो नहीं है। तरह इस पर ना दलील तो मेरे पास है ही नहीं। आमतौर पर इस तरह गुस्से में भी आदमी मतलब यानी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो यूं भी इसका गुस्सा थोड़ा निकलता है और थोड़ा फिर इसको सुकून मिलता है। कुछ ना बोले तो फिर अंदर अंदर घुट जाएगा ये। सर गुस्सा जो है ना, इसकी जो असरात है ना, ये जब किसी कमज़ोर पर आता है तो ऊपर को चढ़ते हैं, या ये इस ज़बान से निकलते हैं, कभी हाथों से निकलते हैं, कभी वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर कमज़ोर पर नहीं, किसी शहज़ोर पर गुस्सा आता है, जैसे अफसर पर आया, अपने सर पर आया, माँ बाप पर आया, बड़ों पर, जिसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये गुस्से के जो असरात हैं ये नीचे की तरफ जाते हैं और ये दिल में जाकर दाखिल होते हैं। तो इसके दिल में ये भिन्न आता है, और मतलब उसका गुस्सा जो दिल में इसको मतलब समझे भिन्न भिन्नाता है कि यार कुछ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अंदर सदमा ले लेता है, अंदर बुग़्ज़ और कीना उसके बैठ जाता है बाज़ों का, और मौके की ताक में भी रहेगा कि मौका मिले तो इसको छोड़ेगा भी नहीं है, पीछे से वार कर देगा। तो जैसा गुस्सा और जैसी बात जिस पर इसको गुस्सा आया था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो बाज़ वक़्त गुस्सा दिमाग की तरफ जाता है, बाज़ वक़्त गुस्सा नीचे उतर के दिल की तरफ आता है। मेरा नाम मोहम्मद नोमान अतारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। या सीधी मेरा आपसे ये सवाल है, आजकल देखा जाए नमाज के बाद लोग पहली सफ में अगर नमाज पढ़ रहे हो तो वहाँ जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है वो नमाज पढ़कर और कुछ सफ़े छोड़कर पीछे आके नमाज पढ़ते हैं, क्या ये सुन्नत तरीका है? असल नमाज की जमात हो गई ना, तो सफ़े मुंतशिर कर देना, आगे भी ये हो जाना, तो ये अच्छा है, ताकि जो बाद में आए ना वो अगर सब जाकर सुन्नतें बांध लेंगे बिल्कुल इसी तरह सफ, तो अब जो बाद में आएगा वो समझेगा जमात हो रही है, शरीक हो जाएगा। फिर ये लोग रुकू सुजूद आगे पीछे करेंगे तो फिर उसको समझ तो पड़ जाएगी, लेकिन उसको गलत फहमी हो जाएगी। तो इसमें ये हिकमत है कि ये आगे पीछे हो जाए। अच्छा, मज़ीद ये कि अलग अलग जगह पर मैंने कभी कभी ऐसा किया, जैसे सुन्नतें यहाँ पढ़ी तो नफल यहाँ पढ़े, तो इस तरह जगह बदल बदल कर, ताकि हर ज़मीन का हिस्सा जो है वो उसको हम गवाह बनाते चले जाएं। यहाँ भी नमाज़ पढ़ी, यहाँ भी नमाज़ पढ़ी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ी, वहाँ बैठ कर फिर दुआ मांगी, ज़िक्र अस्कार किया उधर बैठ के। तो हर ज़मीन का टुकड़ा जो है ना ये आपस में गुफ्तगू करते हैं, और जिस पर कोई ज़िक्र करने वाले ने ज़िक्र किया, नमाज़ पढ़ी, तो वो दूसरों पर अपनी उसकी फजीलत होती है कि आज तो मेरे ऊपर एक अल्लाह का जिक्र करने वाला गुजरा, और दूसरे जिन पर नहीं गुजरा था, तो वो समझे इस तरह की हदीस से बाग मज़ामीन हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पर हम गवाह करेंगे ना, ये शायद मस्जिद अपनी फैज़ान मदीना के तकरीबन सुतून जो है ना, मैंने करीब जा कर इनको कलमा पढ़ के गवाह किया है। एक दौर में जब ये आप लोग नहीं होते थे, छीना झपटी नहीं होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने इसको गवाह किया है। ये बेजान चीज़ों को गवाह किया जा सकता है। इसमें हुक्म भी ये है कि फ़र्ज़ पढ़ के सुन्नतों में कुछ फासला देना चाहिए। नहीं, फ़र्ज़ पढ़ के फ़ौरन मुत्तसिल सुन्नतें पढ़ने से हदीस में मना किया कि नहीं, साहबा ने रोका। जैसे हज़रत उमर की हदीस है, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है। तो अब वो जो फ़र्क है उसकी दो सूरतें बयान की गई हैं कि या तो कुछ ज़िक्र अस्कार कर ले फिर उसके बाद पढ़े, दूसरा ये कि उस जगह को तब्दील कर ले। तो मुफ्ती अहमद अरखन नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फिर उस हदीस के तहत ये लिखा कि बेहतर ये है कि ज़िक्र अस्कार भी करे और साथ में जगह भी चेंज कर ले। तो यूँ फ़र्ज़ से हट कर, जिस जगह फ़र्ज़ पढ़ रहा है उससे हट कर ये सुन्नतें अदा हों। उमूमन ऐसा ही होता है
कि कुछ ना कुछ आगे पीछे लोग हो जाते हैं, अगर हो थोड़े ही 5-7 हों और एक ही साथ वो पहला फातिहा पढ़ लिया इमाम साहब ने, वो सारे उठकर अब सुन्नतें बांध लें और एकदम से कोई मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसको तो इमाम अपनी जगह पर है, मुक्तदी अपनी जगह पर, सब सफ बंद लगी हुई है, तो वो ये समझेगा कि अभी जमात जारी है। हो सकता है वो बेचारा शरीक हो जाए, फिर इसको बाद में पता चले कि नहीं जमात तो नहीं हो रही। ये भी हिकमत तो है, लिखी हुई हिकमत यहाँ, कि वो मतलब इस तरह लोगों को किसी को गलतफहमी ना हो। जी जी, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। हमजा रजा बेटा, आंखें खोलो, ये देखो लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। जी बहुत अच्छी हैं। हमजा रजा, जरा सी बेएहतियाती से आपकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, अब सर्दी तो नहीं लग रही? हल्की सी लग रही है। लगता है बुखार तेज हो गया है आपको। दादा जान, इस बुखार को भी रबीउल अव्वल में आना था। बेटा, बुखार को बुरा नहीं कहते, बल्कि जब हम बीमार हों तो हमें सब्र करना चाहिए। इस पर हमें सब्र का सवाब भी मिलता है और हमारे गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। दादा जान, दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और खूब धूमधाम से जश्न विलादत मना सकूं। डॉक्टर जहूर साहब को दिखा देंगे, इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत तो है हैदर रजा साहब? कहाँ जा रहे हैं हमजा रजा को लिए? वसीम साहब, बुखार हो गया है, डॉक्टर जहूर के पास दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक ही खुराक में ठीक हो जाएंगे। चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे हैदर रजा साहब, मैं तो मेडिकल स्टोर वाले को अपनी तबीयत बता देता हूँ कि मुझे ये हो रहा है, फिर उससे दवा ले लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो जाता हूँ। वसीम साहब, डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब मौजूद कहाँ होते हैं? क्लिनिक में आए दिन किसी न किसी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर गए हुए होते हैं। अरे इत्तेफाकन हो गया होगा, आप बीमार हूँ और वो मौजूद ना हुए हों। वसीम साहब गौर कर लीजिए, कहीं रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में डॉक्टर साहब की गीबत तो नहीं हो गई आपसे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हैदर रजा साहब, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा और लोगों से सुना। वसीम साहब, गीबत क्या है और कैसे होती है, इसको समझने के लिए आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की किताब गीबत की तबाहकारियाँ पढ़िए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए क्लिनिक चलते हैं, वहीं से पता कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर रजा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह इमरान भाई, आपने तो पहले से अपने स्टोर को सजा लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मकतबतुल मदीना से ये सजावट का सामान ले आया था। अच्छा माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, डॉक्टर साहब बैठे हैं? जी जी, डॉक्टर साहब हज से वापस आ गए हैं और अपने क्लिनिक में मौजूद हैं। अच्छा माशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब अब हाजी भी बन गए हैं। चलिए फिर हमजा रजा का डॉक्टर हाजी जहूर साहब से चेकअप करवा लेते हैं। अरे हैदर रजा साहब, क्या हो गया हमजा रजा को? बुखार हो गया है। आजम साहब, और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? जी चल रहा है इलाज। नेक्स्ट पेशेंट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम था? आजम हुसैन। जी आजम साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब पहले से आराम है, जोर से सांस लें। अब पहले से बेहतर है। इन्हीं मेडिसिन्स को कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, बस एक रिक्वेस्ट थी कि बेड रेस्ट लिख देते तो मेरी छुट्टियां बच जाती। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए हैदर रजा साहब। क्या हुआ है हमजा रजा को?
बुखार हो गया है, सर्दी भी लग रही है। अच्छा, परेशान होने की बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हमजा रज़ा बेटा, मुंह खोलिए। हमजा रज़ा, ये थर्मामीटर ज़बान के नीचे रखना है। हमजा रज़ा, इसे दांतों से नहीं पकड़ना। और क्या मसला है? डॉक्टर साहब, इनको भूख नहीं लगती, खाना खाते हैं तो थोड़ा सा खाकर कहते हैं कि बस पेट भर गया। चले, मैं दवा लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे भूख लगना शुरू हो जाएगी। प्लीज इंजेक्शन ना लिखिएगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। सिर्फ मेडिसिन लिखी है, इंजेक्शन नहीं लिखा। हमजा रज़ा, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन तो नहीं लिखा, लेकिन आप फिर से बाहर की तली हुई चीज़ें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बाज रहिएगा। क्यों डॉक्टर साहब? सब खा सकते हैं, सब खिलाएं हैदर रज़ा साहब, बस ये दवा वक्त पर देते रहिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हाँ, 2 दिन के बाद हमजा रज़ा की तबीयत चेक करवा दीजिएगा। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, दादा जान तो बाहर की चीजें खाने से मना कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब ने सब खाने को कहा है। अब मैं किसकी बात मानूं? मेरा भी एक सवाल है हजरत साहब, इन डॉक्टर हजरात के बारे में आप क्या फरमाते हैं जिनकी लिखी हुई दवा किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से मिल ही नहीं सकती? वो नुस्खा इस तरह लिखते हैं कि मरीज को दवा सिर्फ एक मखसूस मेडिकल स्टोर से ही हासिल करनी पड़ती है। वो मरीज से कहते हैं कि ये दवा सामने वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। हजरत साहब, बाज ऐसे अफराद होते हैं जो हमें गलत काम करने पर मजबूर करते हैं, बेड रेस्ट का तकाजा करते हैं ताकि ऑफिस की छुट्टियां कवर हो जाएं, जबकि वो इतना बीमार नहीं होते। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय लोग AI कंसल्टेंसी हासिल करते हैं, यानी AI से मशवरा लेते हैं। और बाज नादान लोग तो मेडिकल स्टोर वाले को अपनी बीमारी बताकर दवा इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका ऐसा करना कैसा है? डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी एक सवाल कर लूं। हज़रत साहब, बाज़ डॉक्टर हजरात इन मखसूस कंपनियों की दवा ही लिखते हैं जो उन्हें तोहफे, तहाइफ और दीगर बेनिफिट्स के साथ साथ कमीशन से भी नवाजती हैं। और हज़रत साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि मखसूस लेबॉरेटरीज में ही टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं। इनका ऐसा करना कैसा है? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, वो कौन सी बातें हैं जो एक आम आदमी को डॉक्टर्स की गीबत में मुब्तला कर देती हैं? अल्लाह अकबर। ऐसा कंप्यूटर जैसा हाफजा मेरा अब नहीं रहा, पूरी लिस्ट है सवालात की। अच्छा, सवालात हैं इसमें। जी, पहला तो यही है कि दादा जान तो बाहर की चीज़ें खाने से मना कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने सब खाने को कहा है, मैं किसकी मानूं? हमजा रज़ा कह रहे हैं। ये जो इसमें तो दादा जान की माननी चाहिए। डॉक्टर साहब ने खा सकते हैं ये कहा है, लेकिन ये दादा जान की तो कच्ची कर दी ना डॉक्टर साहब ने। तो जो मन भाती बात की ना डॉक्टर साहब ने, हमजा को तो मजा आ गया ना, शुक्रिया भी बोला ना इसने। तो एक तरह से मतलब ये क्या, डॉक्टर साहब ने रद्द एक तरह से क्या क्लियर कट रद्द कर दिया। तो ये जंक फूड है या तली हुई चीज़ें, तो ये डॉक्टरों को पता होती है कि ये नुकसानदेह होती है, लेकिन ये ना कि वो खाओ पियो। डॉक्टर इसीलिए अच्छा लगता है, ये हकीम जो है ना ये अच्छा नहीं लगता, परहेज ये बहुत बताता है। छूट में बोलेगा चावल बंद करो, अब यार चावल के बगैर तो गुजारा नहीं है अपना, चावल बंद करो। अच्छा, मिर्च मसाला कम करो, खट्टी चीज़ें मत खाओ, ये नहीं खाओ। हकीम साहब की परहेजियाँ जो है ना, इससे लोग कतराते हैं। डॉक्टर बोलता है सब खाओ, मैं हूं ना। और डॉक्टर साहब बार बार बुलाएंगे, फिर आ जाना, कल आ जाना, 2 दिन के बाद आ जाना, हर बार की फीस डॉक्टर साहब खींचते रहेंगे। ये हर डॉक्टर की बात नहीं करता, दुनिया देखी भाली है। तो इस तरह बारह लेके जिन चीज़ों का वो परहेज का जो है, जैसी चीज़ें, पेट भी डिस्टर्ब था हमजा का, उसने बताया ना दाऊद वो हैदर रज़ा ने, तो यूँ मतलब परहेजी तो इसमें है कि 100 दवा की 1 दवा परहेज है। बल्कि तंदुरुस्त आदमी भी अगर इन चीज़ों में एहतियात करेगा ना, तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। दूसरा सवाल, इन डॉक्टर हजरात के बारे में आप क्या फरमाते हैं कि जिनकी लिखी हुई दवा किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से मिल ही नहीं सकती? वो नुस्खा इस तरह लिखते हैं
کہ مریض کو دوا صرف ایک مخصوص میڈیکل اسٹور سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے؟ یہ اصل وہ کمیشن کے چکر ہوتے ہیں، تو ڈاکٹروں کو اس کے لیے کمیشن، بعض اوقات تحفے، گفٹس، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو ریٹرن ٹکٹ بھی ملتے ہیں گھومنے پھرنے کے، ہوائی جہاز کے۔ اچھا، پھر یہ کہ ان کو مخصوص کوانٹیٹی میں یہ ڈاکٹر صاحب کو دوائیں لکھنی پڑیں گی، ایک کو لکھ دیا یا نہیں لکھ دیا اور سب نوازشات ہوں گی نہیں، وہ جو بھی ان کو دیتا ہے تو یہ اصول بھی کرتا ہے، اس سے زیادہ کمائے گا، تو یہ رشوت ہے، اور رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور بھی صورتیں اس میں خیانت بھی ہے کہ ایک مریض آپ پر اعتماد کر رہا ہے تو آپ نے اس کو وہ دوائیں لکھ دی، اچھا پھر اضافی دوائیں بھی لکھتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوسری کمپنی کی لے آیا تو ریجیکٹ کریں گے، میں نے تو یہ اس کمپنی کی لکھی تھی، یہ نہیں، یہ تو یوں ہے، یہ دوا یوں ہے، پھر دوا کی خرابیاں، اس کی خوبیاں، تو اس طرح کئی اس میں بدعنوانیاں بعض ڈاکٹر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ لیبورٹری کا بھی اس میں اگر وہ الگ سے سوال آئے گا شاید، تو بہرحال یہ کہ اس طرح ڈاکٹر کو کرنا جو ہے یہ خیانت ہے۔ ڈاکٹر کو مریض سمجھنا چاہیے، پیشنٹ سمجھنا چاہیے، کسٹمر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا گاہک ہے، اس سے سب وصول کرتا رہوں۔ مزید ڈاکٹر صاحب سوال کریں کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہمیں غلط کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، بیڈ ریسٹ کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ آفس کی چھٹیاں کور ہو جائیں، جبکہ وہ اتنا بیمار نہیں ہوتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے لوگ اے آئی سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور بعض نادان لوگ تو میڈیکل اسٹور والے کو اپنی بیماری بتا کر دوا استعمال کر لیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3 کے 3 حصے ہیں۔ یہ کہ بعض افراد تو یعنی کہ وہ بغیر اس کے مانگتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دے دو، یہ نہیں دینی چاہیے، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں جو غلط مانگ رہے ہیں، اور ڈاکٹر بھی اگر دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، جبکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف چھٹیاں مارنے کے لیے اور تنخواہ لیں، تو ایسی تنخواہ جو ملے گی وہ بھی حرام ہوگی اس کے لیے۔ ویسے بھی بیماری کی جو ہوتی ہے نا، بیماری میں تنخواہ کاٹی جاتی ہے، ورنہ تو لوگ بیماری پڑتے رہیں گے۔ اب کوئی کاٹے نہیں، تنخواہ کاٹ دے تو اس کو برا بھلا بولیں گے کہ یہ بے رحم ہے سیٹ یا باس، ہماری تنخواہ کاٹ لی، تو بیماری کی تنخواہ نہیں ہوتی، ورنہ تو لوگ روز بیمار پڑتے رہیں گے، ہر بار بیمار پڑیں گے۔ جیسے یہ اعظم صاحب نے بیڈ ریسٹ کی سرٹیفکیٹ مانگی، خیر بیڈ ریسٹ کی سرٹیفکیٹ بھلے انہوں نے جو مانگی تو خیر سمجھانے کے لیے، لیکن بیڈ ریسٹ کی بھی تنخواہ میں سے نہیں ملتی۔ اب جہاں ملتی ہو کوئی نجی کمپنی اس میں ملتی ہوگی، جیسے اب وقف کے ادارے ہوتے ہیں، ہمارا جامعۃ المدینہ اور ہمارے وقف کا ادارہ دعوت اسلامی کے بہت ہزاروں ہمارے پاس یعنی کہ اجیر ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں بیماریوں کی بھی نہیں ملتی، مطلب وہ تنخواہ نہیں ملتی، ورنہ دیں گے وقف کے پیسوں سے تو یہ مجرم ہوں گے دینے والے۔ دوسرا اس میں جو حصہ تھا، اے آئی کے ذریعے اپنا مشورہ، یہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ اے آئی ہے نا، صحیح بولتا ہوں کہ شفا کی دوا کے بدلے آپ کو زہر کی بھی کھلا سکتا ہے، اس کو یہ مطلب یہ مشین ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان جب اتنا مطلب بدعنوانیاں کر رہا ہے اور دھوکے دے رہا ہے تو یہ تو ہے ہی مشین، اس لیے مطلب یہ کہ اس سے مشورہ نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے مشورہ کر بھی لیا چلو تو کسی مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر اس پر عمل نہ کرے، ورنہ نقصان بعض اوقات بڑا نقصان اس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ میڈیکل اسٹور والے کو طبیعت بتا کر دوا لینا، یہ تو میڈیکل اسٹور والا بھی گناہ گار ہو رہا ہے اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے ساتھ میں۔ اگر میڈیکل اسٹور والا خود اگر ماہر ڈاکٹر ہے تب تو اس سے مشورہ کر کے دوا لے سکتے ہیں، لیکن میڈیکل اسٹور پر بیٹھنا، یہ ڈاکٹر تو اپنی کلینک بنائے گا نا، وہ تو زیادہ پیسے کمائے گا، میڈیکل اسٹور کے مقابلے میں اس کی آمدنی آسان ہوگی، فیس لے لے گا، دیکھنے کے نبض دیکھنے کے، یہ تھوڑا یوں
बाज़ वक़्त जान कर यूँ करेंगे, फिर पीठ बजाएंगे, 2 सवाल करेंगे ताकि वो लगे कि जो मैंने 1500 रुपये दिए ये वसूल हुए, वरना डॉक्टर को पता होता कि इसको क्या देना है, ये समझ आ जाती है। लेकिन वो फिर भी उसको मतलब थोड़ा 2-4 मिनट उस पर तरकीब बनाएंगे, इनफरादी कोशिश करेंगे ताकि जो 1500 दिए उसको भारी ना पड़े और नफ्सियाती तौर पर भी मरीज़ मुतमईन हो। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे होंगे, मैं घर की बात कर रहा हूँ। यानी फिर ज़्यादा वो अच्छा उसको सोडा मिंट की गोली है, तो पहले तो ये होता था, अब पता नहीं आती नहीं तो हाजमे की गोली है। अब वो बेचारा बोल रहा कि डॉक्टर साहब बताना भूल गया था, मेरे पीठ में भी दर्द होता है। अब घुटनों के दर्द की तो उसने दवा लिखवा ली है, अब पीठ के दर्द की अलग दवा दो इसको, तो गर्दन में भी दुख रहा है, अच्छा, और सोडा मिंट की गोली लिख दी उसको हाजमे की। अब उस मरीज को क्या पता ये क्या है, तो ये नफ्सियाती तौर पर उसको सेट करने के लिए एक इस तरह मतलब ये कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये कि मेडिकल स्टोर वाला जो है ना, उसको मतलब इलाज में हाथ डालना है ना, जो माहिर तबीब नहीं है, जो माहिर डॉक्टर नहीं है, उसको मतलब है कि मरीज के इलाज में हाथ डालना ये हराम है, या आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। तो इसलिए ये बाद लोगों को बड़ा शौक होता है इलाज में हाथ डालने का, मैंने आधे डॉक्टर कहलाते हैं वो, मैं तो आधा डॉक्टर हूँ, इतना तजुर्बा हो गया कि आधा डॉक्टर बन गया है। लोग भी थोड़ा अच्छा, अब किसी को जिसने टेबलेट दे दी इस आधे डॉक्टर ने तो ठीक हो गया, अब तो ये बोलेगा हट जाओ मैं ही में, तो बाजू का ठीक तो हो जाता है, अल्लाह शिफा दे देता है। लेकिन अगर ठीक हो गया तो ये दलील नहीं है कि हर एक मरीज की, हर एक इंसान की अपनी अपनी कैफियत होती है। एक ही चीज़ किसी के लिए दवा है, वही दवा किसी के लिए जहर है। जब ये वो एक इंजेक्शन ईजाद हुआ था, मैं भूल गया, मेरा नाम याद था, पेनिसिलिन का इंजेक्शन जब ईजाद हुआ था तो उस वक्त ये मतलब आब हयात का काम करता था, बड़े फ़ायदे मरीजों को होने लगे। लेकिन उसी पेनिसिलिन से बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट और बंदे की मौत। एक ही दवा एक के लिए मतलब वो अमृत होती है, अमृतता, और दूसरे के लिए जहर। इसलिए वो ये डॉक्टर को पता चलेगा कि इसको कौन सी दवा चलेगी। अच्छा, डॉक्टर को भी पता बाज़ औक़ात नहीं चलता, रॉन्ग नंबर लग जाता है और दवा कुछ का कुछ कर देती है। जैसे कि ये एंटीबायोटिक, ये इसका पता नहीं चलता, कोई नई एंटीबायोटिक जो इस पर पहले आजमाई नहीं है, उसको डॉक्टर देगा तो मसला हो सकता है। एक बार मुझे मुल्तान शरीफ में एक लड़का आया था, मतलब कोई ले गए तो उसको, तो इसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था, बोला वो बस डॉक्टर ने ऐसी दवा दे दी कि इसकी आंखें चली गई। बाज़ वो देखे जैसे कि दवा खाई गुर्दे फेल हो गए, तो एंटीबायोटिक ये कि कत्ले आम करता है और या पार। एंटीबायोटिक बहुत ख़तरनाक भी होती है, लेकिन अब ये कि अब इलाज का तकरीबन ज़रिया ये रह गया है, जल्दी आदमी को शिफा भी तो जल्दी चाहिए ना, अभी काटी अभी भूनी, तो बस वो क्या आर पार बाज़ हो जाता है। बाज़ एंटीबायोटिक इनके नज़दीक, डॉक्टर के नज़दीक ज़रूरी होती है। कभी ये होता है कि इसको मखसूस उसका कोटा होता है कि इतनी मैं बेचूंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा, जो कि है हराम, रिश्वत है, लेकिन यह कि वो झूठी सच्ची वो लिख के देता है। लेकिन मैं हर डॉक्टर को नहीं बोलता कि ऐसा करता है, लेकिन दुनिया देखी वाली करने वाले शायद ज़्यादा हैं, ना करने वाले कम। ये भी हो सकता है दुरुस्त हो, ये भी हो सकता है गलत हो, बहुत मसाइल हैं, बहुत ही मसाइल हैं। अगर डॉक्टर सही हो जाए तो शायद मेरी उम्मत है, जो आका की उम्मत है हमारी, आका की उम्मत, ये इसके आधे दुख दर्द ख़त्म हो जाए। इतने मसाइल क्रिएट कर दिए हैं इन लोगों ने, अल्लाह इनको हिदायत दे। जो ऐसा करते हैं उनको, जो नहीं करते अल्लाह उनको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे, खूब बरकतें दे इनको, और इनके हाथ में अल्लाह पाक शिफा रखे कि जिसको ये हाथ लगाएं मरीज़ ठीक हो जाए और उनको रोज़ी में खूब बरकत मिले। उनके लिए ज़ाहिर दुआएं कि मरीज़ की हमदर्दी वो करते हैं, गलत दवा नहीं लिखते, जितनी दवा की इनको ज़रूरत है सिर्फ उतनी लिखते हैं, और जहाँ मतलब इनकी मसलहत होती है कि दवा की ज़रूरत है लेकिन बग़ैर दवा के ये ठीक हो सकता है, तो फिर उसको बग़ैर दवा के
तरकीब बनाते हैं। तो इस तरह अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, इसकी कोई ये नहीं कि ये ख़त्म हो गए। मेरी आँख के मसले हैं अब भी कुछ ना कुछ। एक बार साबुन का फीन आँख में चला गया था, झाग, तो वो आँख जो है वो जब से कुछ ना कुछ, ये लेफ्ट आई जो है ये प्रॉब्लम कभी कभी करती है। बड़े ड्रॉप्स इसमें मैं डाले, लेकिन फिर भी पलट कर फिर डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया। वो मतलब मैं उनके पास एक ही मेरा उसूल है और मशवरा भी है, एक डॉक्टर, उसको आपकी पोजीशन, आपकी तबीयत, आपकी कैफियत, कौन सी दवा चलती है, कौन सी नहीं चलती, कौन सी दवा का कितना डोज आपको काफ़ी होता है, ज़्यादा हो तो नुकसान करेगा, कम होता तो आपको ठीक नहीं होगा, ये सब उसको तजर्बा हो जाता है। तो आप बदल के डॉक्टर जो जाते हैं ना, वो हर डॉक्टर दूसरे पास जाएंगे ना, वो एक इकाई से चलाएगा, आप तख्ते मश्क बने रहेंगे। अगर मेरी बात समझ में आती है, इस पर अमल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। पहले फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं एक को पकड़ लिया ना, आहिस्ता आहिस्ता से वो डॉक्टर आपके वजूद के ताल्लुक से ट्रेंड हो जाएगा। तो खैर वो एक ही डॉक्टर थे हमारे, डॉक्टर सलीम शिवानी, अल्लाह गरी के रहमत फरमा, अचानक इनका इंतकाल हो गया और अब मैं भी सोचता हूँ कि अब मैं किसके पास जाऊँ, बात है। खैर तो इन्होंने आखिर में मुझे मशवरा जो दिया ना, वो बता रहा हूँ कि बोला अब कोई दवा मत डालो, छोड़ दो इसको, इसके हाल पर। मैंने छोड़ दिया। अब कभी भीग जाए, कभी दर्द हो, कभी फड़के, छोड़ो इसको, नहीं डालनी दवा, नहीं डालनी। अब कुछ अरसा गुजर गया, बगैर दवा के ही काम दे रही है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कौन देगा मशवरा, इसका कमीशन बंधा हुआ नहीं होगा। वरना तो कमीशन बंधे हुए होते हैं कि फुला मेडिकल स्टोर में ये मिल जाएगी आपको, दौड़ाता रहे अपने आप को। तो अल्लाह इनको खरी के रहमत करे, दिल में जगह पाली डॉक्टर साहब ने। बड़ा उसने सलूक, हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत पुरानी ताल्लुकात थे इनसे। तो माशाअल्लाह अल्लाह इनको करवट जन्नत नसीब करे। जब भी तो इनका जिक्र खैर कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल ये कि एक डॉक्टर, मक्का मदीना, दर की ठोकरें खाओगे तो मंजिल मिलेगी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। आज तो माशाल्लाह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह के कुछ हमारे यहाँ जमा हैं साईं भाई, तो इनको भी, ये तो दीन से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग होंगे जब भी तो यहाँ जमा हुए, वरना कौन आता है? हम लोग कौन पूछता है मौलाना होगा, यार ये मौलाना को क्या समझ पड़े? अरे भाई मौलाना के बाद 2 घड़ी बैठो, पता चलेगा कि आपको कितनी समझ पड़ती है। अरे खाली दाढ़ी रख ली या अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू किया तो इसका मतलब है कि इसको कुछ ना समझ पड़े, तो ज़्यादा समझ पड़े। वाकई बोलता हूँ, जो उलमा होते हैं ना, इनको बहुत समझ पड़ती है, बहुत समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं। मुफ्ती जो है ना, किसी इलाके में मुफ्ती है ना अगर, तो वो इलाके में सबसे ज़हीन फ़र्द यही है। अभी आपके वो दुनियावी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, ये बोलता नहीं, इसका मतलब उसको समझ नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, मुँह से खाता है, नाक में कभी नहीं डालता नहीं वाला। आप हो सकता है डाल दें, कभी ये नहीं डालेगा। मैं तो बारहा बोल चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं। आलिम कितना सियाना और समझदार है। एक भी आलिम दीन आप नहीं ला सकते जिसने कभी खुदकुशी की हो। डॉक्टर खुदकुशी करने वाला मिलेगा, आपको क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, अमेरिका की सनद वाला, जो बोलो कम है, आपको मिलेगा खुदकुशी करने में। बड़े से बड़ा सरमायादार जो मौलाना को घास नहीं डालता, ऐसी घास खाता है कि उसको जहर चढ़ जाता है, खुदकुशी करके मर जाता है। एक मौलाना जो आलिम दीन हो, तो वर्षों से मेरा ये चैलेंज बाकी है, किसी ने अभी तक कबूल नहीं किया। एक आलिम दीन जो वाकई आलिम दीन हो, मुफ्ती इस्लाम हो, उसने कोई खुदकुशी की हो। हालांकि इनकी तादाद भी लाखों है, लाखों की तादाद में उलमा मुफ्तियान, एक भी नहीं मिलता यार। फिर बोलते मौलाना को समझ ना पड़े। समझ पड़ती है जब भी तो तुम्हारी तरह बिजली की तार नहीं पकड़ता, समझ पड़ती है जब भी तो पंखे से नहीं लटकता, समझ पड़ती है जब भी तो छलांग नहीं लगाता समुंदर में, हराम मत नहीं भरता, वो समझदार है। तो आलिम समझदार होता है। ये जहन से निकाल दें कि मौलाना को कुछ नहीं समझ पड़ती, ये अपने साथ बात नहीं करता, दुनियावी मामलात में उलझता नहीं है, ये भी इसकी समझदारी है। यार ये दुनिया के इस तरह के लोगों से हम उलझेंगे तो अपनी बेइज्जती कर देंगे। ये एक चुप 1000 सुख, माजरत के साथ।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आखिर में वो हैदर साहब का एक सवाल था कि आम आदमी जो है वो डॉक्टर की जो गीबत में किस तरह मुब्तला होता है, तो कौन सी बातें जो एक आम आदमी को डॉक्टर्स की गीबत में मुब्तला कर देती हैं? वो तंबीउल गाफिलीन में गालिबन एक वाक़या पढ़ा था मैंने, एक बुजुर्ग का नाम, बुजुर्ग का सुफियान सौरी थे या कौन थे भूल गया हूँ रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बार फरमाया दो डॉक्टरों के बारे में कि अगर मुझे गीबत का खौफ ना होता तो मैं बोलता इन दोनों में से ज्यादा ज़हीन कौन है। यानी इतना प्यारा इन्हें नुक्ता ही है कि मैं अगर एक दोनों में से एक को ज़हीन बोलूंगा कि ये ज़हीन है तो इसका मतलब दूसरा ठोठा है। इसकी बुराई मैंने बयान की। अच्छा, अब अगर वाकई वो ठोठा है तो मुझे पता है, यानी कि वो ठोट है, ठोट एक ठोट बोलते हैं, कुंद ज़हन, तो एक इसमें खामी है, कमजोरी है। तो ये इसकी मैंने बुराई पीछे से बयान की, गीबत है। सामने कहा तो दिल आज़ारी है, और अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर तोहमत है। तो अल्लाह वाले बहुत ही डीपली मतलब मालूमात रखते हैं। तो ये इस तरह तो ये समझाने की बात। तो अभी आप दो डॉक्टर हो एक क्लिनिक में, यार अपने इसके पास चलते हैं, यार ये बड़ा सही है, ये है वही। दूसरा माज़अल्लाह तो ये मतलब ज़ाहिर के ग़ीबत, बासूरतों में तौहीन, तोहमत, ये इजी है, हम लोगों की ज़बानों पर ये बात इजी है कि दो में से एक को हमने कुछ भी बोलना बोल दिया, तो एहतियात करने की हाजत है। अच्छा, इसके अलावा भी डॉक्टरों की ग़ीबतों की मिसालें, ग़ीबत की तबाहकारियाँ जिसका मशवरा हैदर रज़ा ने दिया, उसमें 17 मिसालें दी हैं डॉक्टर के बारे में। ग़ीबत की 17 मिसालें, 17 एन आएगा आखिर में। ना तजर्बाकार है, यानी डॉक्टर के बारे में ये हम अपने को फायदा नहीं हुआ ना तो भूल गए क्या शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर नहीं देता। ना तजर्बाकार है, इसने बीमारी को समझा ही नहीं। बहुत गर्म दवाएं दे दी, पैसे बहुत लेता है। गलत इंजेक्शन लगा दिया है, इंजेक्शन लगाने में इसका हाथ भारी है। सैंपल की दवाएं बेच डालता है, जबकि बेचता हो। गलत तो करता है सैंपल की दवाएं बेचकर, लेकिन पीछे से इसका तस्करा बतौर बुराई, तो ये ग़ीबत है। ऑपरेशन गलत कर दिया है बेरहम में, ऐसी दवाएं दे दी कि मेरा मैदा तबाह हो गया है, बहुत महंगी दवाएं लिख देता है, जिससे आर्जी तौर पर मरीज खड़ा तो हो जाता है मगर बाद में तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। बात बात पर टेस्ट लिख देता है, मरज को खामा का गंभीर बताकर ऑपरेशन कर दिया। उससे ऑपरेशन करवाया था, फेल हो गया। फलां ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जब देखो ऑपरेशन ही की बात करता है। मकसूद सिर्फ पैसे खींचना है और हमको 2 लाख रुपए के खर्चे में उतार दिया है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें थोड़ा समझने की बात है। जैसे मैंने भी डॉक्टरों की बुराइयां की है ना, जी भर के की, तो मैंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, मैंने किसी को बाकायदा मुतय्यन नहीं किया, फिक्स नहीं किया कि वो डॉक्टर, ये नहीं कहा जिसको आप पहचानते हो। मैं जनरल बात करना ये ग़ीबत नहीं है, किसी कौम की बुराई करना ये ग़ीबत नहीं है। तो ये मैंने एक कौम की जो बदउनवानियाँ करती है, मैंने उसकी बुराई बयान की जो उसमें है। और ग़ीबत जब ही होती है कि उसमें है, तो ये ग़ीबत अगर है भी तो गुनाह भरी नहीं है। फिक्स करके जिसमें वो खराबी है, वो वाकई यानी कि गलत ऑपरेशन कर दिया उसने, तो हमने ये कहा, तो अब गलत जानबूझकर किया ये हमें पता है, तब तो है ग़ीबत बिला ज़रूरत हमने अगर इसका तज़किरा किया। और अगर जानबूझकर नहीं किया तो फिर तोहमत की तरफ जा रही है बात, जो ग़ीबत से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अच्छा, अब इसमें भी सूरतें हैं कि जहाँ ज़रूरत हो कि भाई उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो इसमें ये खराबी है, जो आप खराबियाँ बयान हुई और वाकई हों और बचाना इसको मकसूद है, तो अब गुनाह भरी ग़ीबत नहीं है।
या कोई ऐसा है डॉक्टर के जो करता है, इसका धंधा यही है कि मरीज गया तो वो मतलब फंसा, तो ऐसा जो है उसको मशहूर करना भी जायज़ है। अच्छी नीयत से करेंगे सवाब होगा कि भाई इस डॉक्टर के पास मत जाया करो, यार ये तो छुरी लेकर ही बैठा है। जैसे आजकल वो डिलीवरी केस में ऑपरेशन ही कर रहे हैं, पहले डिलीवरी होती थी, जब मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई ना, पहले डिलीवरी घर में होती थी, दाया जो होती थी ये करती थी, दाया बोलते थे उसको, दाई हलीमा। तो दाई हलीमा डिलीवरी से मशहूर नहीं है, वो दाई बोलते हैं, पता नहीं दाई कहलाएगी यानी कि उसे दूध पिलाया था सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन सहाबिया यानी ईमान भी ले आई सरकार पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन ये इनको मशहूर दाई किया हुआ है। और ये अभी मेरी तवज्जो गई कि दाई तो वो होते हैं जो जनाई का काम करती है, डिलीवरी करवाती है, जो मिडवाइफ जिसको बोलते हैं। अब खुदा बतेर जाने इसको अभी निकलेगी लुगत इंशाअल्लाह, रहनुमाई हो जाइए कि दाई किसको बोलते हैं। वो तो शोरा लिखते हैं दाई इसको। दूध पिलाने वाली का नाम दाई बाहरी शरीयत में लिखा हुआ है। इसी तरह लुगत में भी जो दूध पिलाने वाली बच्चे की परवरिश करने वाली है उसको दाई कहा गया है। वो तो मेरे जहन में एकदम आया क्या कि दाई हम लोग कहते तो है लेकिन पता नहीं ये दुरुस्त है यानी। तो दूध पिलाने वालियों को भी दाई कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसमें इसी तरह दीगर बुजुर्गों ने भी दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्तेमाल फरमाया। और लुगात में भी इसकी तायीद है। दाई माने दूध पिलाने वाली, या दूध पिलाने वाली भी, या दूध पिलाने वाली भी, परवरिश करने वाली भी, और इसी तरह वो जो आपने माना बयान किया था वो भी, ये तमाम माना इसके लिखे हुए हैं। ये तो कुरान से साबित है यार। जी हाँ, ये मेरी तर्जमा है कंजुल ईमान। और हमने पहले ही सब दाइयाँ उस पर हराम कर दी थी। तो बोली क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फिर उनके घर, फिर इनको दूध पिलाया इनकी असल अम्मी ने ही। इसे अल्लाह पाक ने तरकीब फरमाई, हिकमत फरमाई। दाई हलीमा जाग उठे, दाई हलीमा जाग उठे, दाई हलीमा जाग उठे, तेरे बड़े नसीब। दाई हलीमा जाग उठे, दाई हलीमा जाग उठे, तेरे तेरे नबियां दे सरदार आ गए, गोदी बिच तेरे नबियां दे सरदार आ गए। क्यों बारवीं पे है सभी को प्यार आ गया, क्यों बारवीं पे है सभी को प्यार आ गया। इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया। था क़यामत मरहबा, था क़यामत मरहबा, अव्वल क़यामत मरहबा, आखिर क़यामत मरहबा, रहबर क़यामत मरहबा, दिल भर क़यामत मरहबा, आला क़यामत मरहबा, बाला क़यामत मरहबा, सरवर क़यामत मरहबा, अच्छे क़यामत मरहबा, सच्चे क़यामत मरहबा। इस तरह बारह लेके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन गलत कर दिया है, या ऑपरेशन, हाँ वो ऑपरेशन नहीं, छुरी सजा के बैठे नहीं। यकीन माने मेरे पास ऐसे केस हैं, हाँ बताया है लोगों ने, बताने वालों ने कि फलां जगह गया या एक जगह गया तो ऑपरेशन बताया, फिर वो मुझे पता चला कि फलां नॉर्मल पैसे ज़्यादा लिए तो मैं वहाँ गया तो मेरे
नॉर्मल हमारे यहाँ डिलीवरी हो गई, पैसे ज़्यादा देने पड़े। अब ये दुकानदारी लगा रखी है ना, यानी पेशेंट को इन्होंने कस्टमर बना दिया है, खुदा वो क्या जवाब देंगे। खाली पैसों का मसला नहीं, पैसों का तो नुकसान हुआ उसको, लेकिन उसकी जान से जो ये खेला है बेचारी के, और मेजर ऑपरेशन, इतने दिन तकलीफ होती है इसमें। और ये ऐसी मरीज है कि इससे हमदर्दी भी लोग नहीं करते ज़्यादा। बच्चे की खुशियां मना रहे होते हैं, ये तड़प रही होती है बिस्तर पे इसकी माँ, मुबारकबादियां दे रहे होते हैं। अब ये बेचारी बोले मैं मर रही हूँ, मुझे मुबारकबाद की क्या जरूरत है, बोलेगी ये भी नहीं, फीकी फीकी मुस्कुराहट उसको भी करनी पड़ेगी। अंदर अंदर तो परेशान, जिसका ऑपरेशन उसको तकलीफ होती है ना, हमें क्या पता। तो खुशियां मना रहे हैं, अकीके की तैयारी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये ऐसे जानों से नहीं खेलना चाहिए। लोग मरते हो तो मर जाएं। एक पुराना वाकया बड़ी मुझे याद आता रहता है, रहम आता है। एक बुढ़िया पर, बेचारी को कैंसर था, एक हॉस्पिटल में नाम ले लेता, वहाँ ये रोज़ जाती थी, इसके बेटे ने कहा जाके बैठती है इंजेक्शन लगाने के लिए, 50,000 का एक इंजेक्शन है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाती है, बैठ कर आ जाती है, नहीं है, चले आती है। वो इंजेक्शन आते हैं, सब लोगों के जेब में चले जाते हैं, बड़े जो होते हैं ना। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक को बावले कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते ने, वो बहुत खतरनाक होता है, हड़काया कुत्ता हम लोग बोलते हैं। तो वो उसकी जान पर बनी हुई थी, और उस डॉक्टर ने बोला मुझे पता था कि इंजेक्शन डोनेशन में आए हुए हैं, तो मैंने तरकीब की कि बेचारे को इसको ये इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो वो शायद तैयार भी हुए लगाने के लिए कि ये हाँ ठीक है। ऊपर से फ़ोन आया, किसी को देना नहीं है ये इंजेक्शन, रख दो। तो वो बोला यार मना हो गया मुझे। अब वो चाहे जान से मर जाए, कल नहीं आज मर जाए, आज नहीं अभी मर जाए, ये जालिम डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाने दिया। तो इस तरह मतलब यानी कि आप देखें कि ये कितना मतलब, ये क्या इनको मरना नहीं है यार, ऐसे लोगों को मौत नहीं आएगी। कभी एक घड़ी अपने ऊपर सोचे कि मुझे बावला कुत्ता काट ले तो मेरी क्या कैफियत होगी। ये ऐसा खतरनाक होता है बावले कुत्ते का काटा, बावला में ये जो मैं पागल कुत्ता, कि ये अगर ये मरीज दूसरे को काट ले तो उसको भी इसी तरह उसके दांतों से जहर चढ़ जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है। एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में इयादत के लिए कहीं गया होगा, तो वो इसी तरह का मरीज वहाँ होगा, तो वो मैं उसकी इयादत के लिए नहीं गया था, किसी और की। किसी ने बोला होगा दुआ कर दो या दम कर दो, तो फिर मैं बढ़ा, तो फिर मुझे करीब चला गया मैं उसके, फिर किसी ने मुझे आ जाओ ये काट ना ले, वो अपनी बेचारा था कि लेकिन काटा नहीं उसने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो है बड़ा मतलब नाजुक मामला, मरने देते हैं कैंसर के मरीज को, ये अपना बिल्कुल ग्राहक बनाकर इससे पैसे खींचते हैं। इतनी रकम पहले जमा कराओ, और बहुत मुश्किल हो गया है मामला, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका बहुत आगे बहुत बड़ा फील्ड है, दवाओं का फील्ड, और इसमें क्या क्या बदउनवानियाँ, ये बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक है। जो मैं कह रहा हूँ नहीं, डॉक्टर साहिबान जो बैठे हुए ये सब समझ रहे होंगे कि ये इसको तो कुछ भी पता नहीं। इतना मतलब ये फील्ड जो है ना, ये आगे बढ़ गया है तबाही में, खाली पैसे कमाने हैं और लोगों की जानों से खेलना है। आपने क्लिनिक में भी बहुत गुजारा है? जी हाँ, किसी दौर में मैं इंजेक्शन वगैरह लगाना जानता था, अब तो बरसों हो गए मुझे लगाया नहीं इंजेक्शन। हुजूर, आपने जो सारी जो शहादत अता फरमाए, तो कुछ सवालात, एक तो अभी गीबत पर जो बयान हुआ, तो आपने फरमाया कि गीबत के ताल्लुक से कि मैंने कोई ऐसा मुअय्यन तो नहीं किया या फिक्स तो नहीं किया कि इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये जुमला कह दे कि सारे के सारे डॉक्टर ही ऐसे हैं, तो क्या ये गीबत में आता है? एक कौम को बुरा कहने से सारी हर फर्द मुराद होता नहीं आमतौर पे। पूरी कौम की गिबत है, बाहर से कुछ लिखा हुआ है कि हर फर्द मुरादियाँ अगर हो तो ऐसी इबारतें मिलेंगी किताबों में जो एक कौम को कहा जा रहा होता है। मिसाल भी जहन में आ रही है, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, अब आपने इरशाद फरमाया कि मेडिकल स्टोर वाले के ताल्लुक से
اب میڈیکل اسٹور والا کے پاس جب دوائی ڈاکٹر کی وہ پرچہ لے کے جاتا ہے تو اصل میں ڈاکٹر کا بھی پرابلم یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ 10 روپے والی دوائی ہو یا 100 روپے 10 روپے کی دوائی کا بھی وہی کمپاؤنڈ ہے جو 100 روپے کی دوائی کا کمپاؤنڈ ہے. ٹیبلٹ کی دونوں کی ایک ہی کوالٹی ہے مگر وہ 100 روپے کی کیونکہ وہ ایک کمپنی کی ہے, اس کی برانڈ ہے, اور یہ 10 روپے والی ہے نا, اس کی کوئی مشہور کمپنی نہیں ہے. اس ڈاکٹر کو پتہ ہوتا تھا, ڈاکٹر نے 100 والی دوائی لکھ دی کیونکہ اس بعدوں کا ڈاکٹر کے اس کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے. اب کمپاؤنڈر یہ اپنے میڈیکل اسٹور والے کو پتہ ہے کہ یہ جو 100 روپے والی دوائی ہے نا, وہ بعض اوقات مریض کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ دوائی یہ کمپنی کی ہے اس لیے 100 روپے کی ہے, مگر سیم چیز اس کمپنی کی ہے یہ 10 روپے کی ہے. تو اب کیا میڈیکل اسٹور والے کو یہ مشورہ دینا درست ہوگا جو یہ مشورہ دے رہا ہے, کہ اس مشورے کے بعد یہ کسی اور سے مشورہ کرے؟ میڈیکل اسٹور والا مشورہ بے شک دے, اچھا مشورہ دے, لیکن اپنے اوپر لے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی اور ڈاکٹر سے پوچھ لو, دونوں کا فارمولہ ایک ہی ہے, وہی کمپنی کا نام ہے. میڈیکل اسٹور والے کو عموماً پتہ ہوتا ہے. جی, لیکن وہی کیا اپنے اوپر لے, اپنے اوپر لینا, صحیح کہا, بالکل درست فرمایا. اور دوسرا یہ کہ جو یہ بعض ہاسپٹلیں ہوتی ہیں جن میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سماجی اداروں کی ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی, تو اس میں جو جاب کرتے ہیں نا وہ اندر سے دوائیں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں میرا ایک یوں واسطہ پڑا تھا کہ میں دوسرے ملک میں تھا, تو ایک دوا کے تعلق سے مجھے کسی نے کہا کہ میرا دوست ہے, رشتہ دار فلاں ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. خیر پھر وہ میرے لیے دوا لایا ہے, اب کیا ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ کرتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شاید پوچھا ہوگا کتنے کی آئی. اس نے بولا کہ میں تو یا عزیز کا اب بتایا اس نے کہ میرا عزیز کام کرتا ہے, دوست کام کرتا ہے, تو اس سے لے آیا ہوں. تو میں نے کیا اس نے وہاں سے آپ کو مفت دی, یا وہاں مفت دوائیں دیتے ہیں, کہ مفت بھی جہاں دیتے ہیں نا, اب آگے اس کا پرچہ بنتا ہے, ڈاکٹر تفتیش کرے گا اس کو ضرورت ہے یا نہیں, ڈاکٹر ضرورت سمجھے گا تو وہ دوا مفت دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ یوں لنگر کی طرح تقسیم کرتے ہیں دوائیں, یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس نے بولا کہ یار تو میرا دوست ہے نا, اس نے دے دی میرے کو, میں لے آیا ہوں, میں نے کہا اس کو واپس دے دو. شاید یہ بھی کہا ہوگا اس کو توبہ بھی کراؤ. میں کیسے استعمال کروں گا یار, یہ تو حلال ہوئی نہیں نا. یہ تو اس طرح اٹھا کے ہاسپٹل سے اس نے دے دی چپکے چپکے. اب ہو سکتا ہے پرچہ بھی بنا دے کہ دواؤں کا حساب تو ہوتا ہوگا نا, یہ کہاں گئی تو کہ مریض کو چلی گئی وغیرہ, وہ جعلی, یہ سب جھوٹ جھوٹ جھوٹ, دھوکا 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 دھوکا, تو یہ پوری لسٹ بنے گی گناہوں کی. بالکل ایزیلی اس طرح کے کام ہوتے ہی ہوں گے. مطلب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ سب سمجھ پڑھنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی پرنٹڈ 312 پیج پر مشتمل کتاب بہار شریعت صفحہ 16 صفحہ 173 پر ہے. کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی, مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں, یہ غیبت نہیں, کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں کے سب ہی لوگ ایسے ہیں, بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں, اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم یعنی پرٹیکولر نہیں. غیبت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب معین و معلوم یعنی جو پہچانے جا سکے ایسے اشخاص کی برائی ذکر کی جائے, اور اگر اس کا مقصود وہاں کے تمام لوگوں کی برائی کرنا ہے تو یہ غیبت ہے. کوئی فرد اس میں اس سے بچا ہوا نہیں, ہر 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 فرد ہی یہ کرتا ہے, اسی کوئی اس نے صراحت کی تب جا کر یہ غیبت بنے گی. جنرلی کہہ دینے سے, جیسے میں نے کہا ڈاکٹر, خیر میں نے تو پھر بھی بار بار کہا کہ بھائی ہر ڈاکٹر کو میں نہیں کہہ رہا, مگر ایسوں کی کثرت زیادت یہ بہت سارے ایسے, اور یہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں جن کو تھوڑا بہت تجربہ ہوگا تو یہ سمجھ پڑتی ہوگی ان کو, نہیں تو نہیں سمجھ پڑتی ہوئی. میرے بارے میں یوں ہوتا کہ یہ غیبت کرتا ہے تو کبھی منڈا جائے گا تو خود سمجھ جائے گا, کسی ایسے ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ گیا تو یار یہ صحیح کہتا تھا. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا الہ الا لا إله إلا الله اللہ لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد محمد سرفراز اتاری بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض ڈاکٹر صرف تجربے کی بنیاد پر اپنا میڈیکل سٹور کھول لیتے ہیں اور کسی دوسرے سے کرائے پر ڈگری لے کر وہ میڈیکل سٹور چلاتے ہیں، تو ایسا میڈیکل سٹور چلانا کیسا؟ ڈگری اس کا لائسنس جو بھی ایک پروسیجر ہے گورنمنٹ کا وہ بھی پورا ہونا چاہیے، ورنہ کیا اگر چھاپا پڑا تو رشوت دینی پڑے گی یا پھر جیل بھگتنی پڑے گی، کیس کباڑے ہوں گے، عزت داؤ پہ لگے گی. تو اس طرح قانون توڑنا ملک کا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہو، تو یہ قانون توڑنا ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ دھوکہ بھی ہے نا کہ اس نے اس کے بعد ڈگری تو ہے نہیں، جعلی ڈگری لے کر اس نے یہ کھول لیا میڈیکل اسٹور. اس سے اس کو توبہ کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. جب جنت ادنا نچھاور ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کیا نعمتیں ملیں گی؟ ماشاء اللہ. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، یعنی جنت کے تعلق سے کہ خلد جنت، اس کے معنی جنت. تو جنت میں ابرار یہ نیک بندے، ابرار. تو ابرار یعنی کہ جو بھی جائے گا ذرا نیک ہی ہوگا جنت میں اللہ کی رحمت سے، یہ وہاں ہوں گے. اور یہ جنت جو ہے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی ادنا نچھاور، نچھاور یہ یوں کرتے، نچھاور لٹاتے ہیں، جب پھول نچھاور کرتے ہیں، جو گل پاشی بھی بولتے ہیں اس کو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا نچھاور ہے یہ خلد. ابھی اس سے پھر اعلیٰ جو خلد ہی میں ہو، سب سے اعلیٰ جو ہے نا خلد میں وہ ہوگا، وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا. سب سے بڑی نعمت جو ہے جنتیوں کو جو ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. اب یہ دیدار ہونا، اب یہ مراد ہے یا کیا مراد ہے اللہ بہتر جانے. یعنی اگر اس کا یہ معنی بنایا جائے کہ یہ جو جنت ہے، یعنی ویسے جتنی بھی نعمتیں کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے بنی ہیں. تو یہ ستارے، چاند، سب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوئی ہیں. تو اسی طرح یہ جنت بھی آپ علیہ السلام پر نچھاور ہی ہے. تو جنت سے اعلیٰ چیزیں بھی، جیسے اگر خلد اس معنی میں لیں کہ جنت کا ایک طبقہ، ایک حصہ، تو اس سے اعلیٰ جنت الفردوس بھی ہے. پھر جو آپ نے بیان فرمایا کہ جنت کی نعمتیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ الگ جداگانہ ہے. پھر اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے اعلیٰ چیزیں اللہ پاک نے کیا بنا رکھی ہیں. وہ اسی بنیاد پہ فرمایا ہو کہ یہ آپ علیہ السلام کا ایک صدقہ ہے جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اس صدقے کے طور پر یہ ابرار کی خلد، اس برات جو ہے اس جنت کے اندر اترے گی. شب اسرا کے دولہا پر نچھاور
ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے۔ یہ ذوق نعت کا شعر ہے مولانا حسن رضا خان کا کہ شب اسرا کے دولے سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب کچھ نچھاور ہونا تھا، تو اسی لیے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ پیدا، اللہ پاک نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہی مقصد تھا کہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور فرمائے۔ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بس بے امکان میں، تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بس بے امیر السلطان برکات ملالیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اس پر سوالے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے انتقال کا اعلان کیا جائے تو عموماً صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اس اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ممکن ہو مرحوم کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اصالہ ثواب کر دیں، اور اصالہ ثواب کرنے کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اصالہ ثواب کی درخواست تو کی جا سکتی ہے، میں تو ایک درود شریف کے اصالہ ثواب کی درخواست کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پتہ نہیں کوئی پڑھے نہ پڑھے، دیر لگتی ہے نا، درود شریف صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بول دیا درود شریف ہے، تو یہ نیت کر لے گا کہ فلاں کو پہنچے، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اور درود شریف کو ہم کم کیوں سمجھے، ایک درود شریف میں سب کچھ ہے۔ تو یہ کہ یہ ثواب تو ملے گا، سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے گا تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب، سورہ فاتحہ کا بھی ثواب بہت ہے، کافی ہے، مختلف فضائل ہیں اس کے، یہ سب ثواب اس کو ملے گا، یہ اس کو اصالہ ثواب کرے گا۔ پھر اس میں جس کو اصالہ ثواب کریں گے، یہ کہ میرے ذہن میں آیا کہ اس کی دل جوئی ہوگی، پھر دل جوئی کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اگر اس کے عزیز کو پتہ چلا کہ فلاں نے میرے مرحوم عزیز کو اتنا اصالہ ثواب کیا، اس کی دل جوئی ہوگی، یا ان کی جو کئی ہوں گے تو ان کی دل جوئیاں ہوں گی، یہ پھر الگ ثواب۔ اس طرح اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اصالہ ثواب کرے گا تو انشاءاللہ ثواب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اصالہ ثواب کرنے سے اپنا ثواب جاتا نہیں ہے، جیسے سورہ فاتحہ 3 بار اخلاص پڑھا اور ایک کو اصالہ ثواب کیا تو اپنا تو پہلے سے موجود تھا، اب اس کے حصے کا ہم کو مزید ملے گا، اس کو تو ملے گا تو ہمارا دگنا ہو گیا۔ تو اس طرح ہم 100 کو اصالہ ثواب کریں گے، سب کو ایک ایک کا ملے گا، ہم کو 100 گنا اور مل جائے گا۔ تو یوں ہی جتنوں کو اصالہ ثواب کریں گے تو ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اصالہ ثواب کرنا تو بڑے فائدے کا کام ہے، کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، اتنوں کو کروں گا اتنوں کو نہیں کروں گا، فلاں کو نہیں کروں گا، ہماری ترکیب نہیں تھی۔ ہر مسلمان کو ہو مسلمان اصالہ ثواب سے مسلمانوں کو کریں گے، اور پہنچے گا بھی صرف مسلمان کو، غیر مسلم کو تو پہنچے گا بھی نہیں۔ یہی سوال تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس
यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ले तो ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी उस भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ अपनी बरकतें लुटा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल अपने घरों पर, दुकानों पर, गलियों को सजा भी रहे हैं। अगर आपने भी अब तक चरागाह नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हमें मुख्तलिफ मनाजिर भी मौसूल हुए हैं, आइए आपको इसका वीडियो क्लिप दिखाते हैं। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। क्यों 12वीं पे गए सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया, घर आमिना के सैयद अबरार आ गया, खुशियाँ मनाओ गमज़दो गमखार आ गया। या खुदा करम तेरा मोमिनों पे ये हुआ, बख्शवाने को खता आ गए ग मुस्तफ़ा, बख्शवाने को खता आ गए ग मुस्तफ़ा। आसियो सुनो रहमते खुदा, आसियो सुनो रहमते खुदा, आ गए नबी आखिरी नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों, आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। झूमो दीवानो मरहबा, दीवानो झूमो दीवानो मरहबा, दीवानो झूमो दीवानो मरहबा, दीवानो झूमो दीवानो। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये हैप्पी प्लैनेट क्या है? वाह भाई, एक नया YouTube चैनल आया है, सर्च करो जल्दी से। अरे वाह, इसमें तो मेरी फेवरेट सीरीज आमना की डायरी भी मौजूद है, मजा आ गया। अरे देखो सारा, ये रही मेरी कार्टून सीरीज साद और सादिया, जिससे मैं हदीस सीखती हूँ, और तो और इसमें तो दुआएं भी हैं। सारा ये देखो ना। अरे हाँ ना, रुको तो, आप सुन क्यों नहीं रही? पहले ये देखो ना जो मैं कह रही हूँ। शहद की मक्खी, नाना अब्बू का गाँव, प्यासा कौवा, सारी पोएम्स है इसमें। अरे मुझे पहले ये नई एपिसोड देखने दो। नहीं ना, आप पहले ये देखो जो मैं कह रही हूँ। अरे बस बस, पहले आप दोनों उलझना छोड़ो, पहले सब्सक्राइब करें, फिर आराम से सब कुछ देखें। आप सब भी हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, और देखें मजे मजे की कार्टून सीरीज, और सीखे खूब सारा इल्मे दीन, सिर्फ हैप्पी प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी प्लैनेट, चलो हैप्पी प्लैनेट। A production by Kids Madni Channel. हैप्पी प्लैनेट, चलो हैप्पी प्लैनेट। बच्चों की मौज लगी हुई है, माशाअल्लाह। बहुत सारा खजाना है इसमें। ये जल्दी जल्दी इसको
डाउनलोड करना पड़ेगा ना, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लें, बच्चों को इंशाल्लाह बहुत सीखने का मिलेगा इसमें। यूट्यूब चैनल पर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हैप्पी प्लैनेट, तो आपको ये यूट्यूब चैनल सामने आ जाएगा किड्स के हवाले से, तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। जिस तरह किड्स लैंड दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूट्यूब चैनल है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन व्यूज़ भी हासिल हैं। इसी तरह ये हैप्पी प्लैनेट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये यूट्यूब चैनल सामने आएगा, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, तो आपको बच्चों के लिए बहुत सा इंशाअल्लाह दीनी मवाद आपको मिलता रहेगा। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, जो फ़ज़ाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम कलट महानामा फ़ैज़ान मदीना की 1 साल की बुकिंग भी दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, मिलाद शरीफ मनाने का मौजूदा अंदाज़ किस खुशनसीब बादशाह ने शुरू किया? सवाल नंबर 2, अल्लामा अब्दुल हई कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक मिलाद शरीफ के मुतालिक सबसे पहली किताब किस सदी हिजरी में लिखी गई? सवाल नंबर 3, बहुत से उलमाए किराम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अपने मौलूद नामे किस मुबारक मकान पर जाकर पढ़ा करते थे? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। माह रबीउल अव्वल शरीफ में अमीर सुन्नत व बरकातुहुल आलिया की जानिब से मुख्तलिफ़ दीनी तहरीकें भी अता हुई हैं, जिसमें नफिल रोज़ा रखने, 12 रोज़ा रखने की भी तरगीब है, 7 रोज़े रखने की भी तरगीब है, इसी तरह 5 रोज़े रखने की भी तरगीब है, और रोज़ाना 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब इरशाद हुई है। अगर आपका इस पर अमल है तो आपको नंबर भी दिखाया जाएगा शोबा नेक आमाल का, उस पर अपना कारकर्दगी भी भेज दीजिए। आज की कारकर्दगी आप समात कीजिए। 12 रोज़े रखने वालों की नीयतें अब तक जो हमें मौसूल हुई हैं 1067, 7 रोज़े रखने वालों की नीयत 1985, 5 रोज़े रखने वालों की नीयतें 3804, इसी तरह 1200 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नीयतें अब तक जो मौसूल हुई हैं 22987। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, न्याज बॉक्स के लिए जो न्याज बॉक्स के लिए शराइत पर अमल का कहा गया ऐलान में, शराइत का नहीं है, ये शराइत बयान के इनमें से किसी एक पर अमल हो तो वो भी अपने लिए टोकन तलब कर सकता है। माशाअल्लाह। कल नाज़रीन से जो सवालात किए गए थे, आइए उसकी कुरान अंदाज़ी वीडियो देखते हैं। 15 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि अलैह को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब अम्मन मियाँ। सवाल नंबर 2, ईमान के बाद पहली शरीयत कौन सी चीज़ है? जवाब नमाज। सवाल नंबर 3, मस्जिद का लफ्जी मतलब बताइए। जवाब सजदा करने की जगह। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: जाकिर हुसैन खान अत्तारी, कराची सिंध पाकिस्तान; मोहम्मद नौमान अत्तारी, मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान; उम्मे फैजान रजा, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान; बिनते अब्दुल कय्यूम, टंडोजाम सिंध पाकिस्तान; मोहम्मद अजहर नजर अत्तारी, छांगा मांगा पंजाब पाकिस्तान; बिनते गुलजार रमजान, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान; बिनते गुलाम मुजतबा नारेजो, दादू सिंध पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद अजहर नजर अत्तारी, छांगा मांगा पंजाब पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फिजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फिजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मरहबा